Good morning, students. Myself Yunus Ali, and welcome to you my YouTube channel, named as the Apex Career Institute. I want to thanks to all those students who have already subscribed my channel and support me. Due to some lack of the time, I am not able to provided you the regular videos, but you are still continuing the watching of my videos and ins- give inspiration to me to provide some more videos on this YouTube channel. I will try my best in the future. We have a institute, the Apex Career Institute for NEET, in offline mode as well as in online mode. Here, we running this institute till 2019, and we are working for the student to selecting in the NEET examination. As you know that NEET is a very precious and very important examination for taking admission in medical fields in the different areas, and we provided a very fabulous result in this area in 2021 and 2022. Also in 2020, we have the student which are studying in the different medical colleges, and in the 2022 NEET examination, we have also provided a very good result. And our three students, name as uh, Rihan Chaudhary, Sadan Anis, and one of them, Vikas Chauhan, they are gaining good marks in NEET 2022, and they are selecting in MBBS courses this year. Previously, in the 2021, one of our student, Suhail, get the 683 marks out of 720 and pursuing his MBBS from University College of Medical Science, New Delhi. And one of our student, Nasir, which was selected in 2020 and pursuing in MBBS second year from Ascent Medical College, Agra. So we are going well, we are doing well, and we help the students who are preparing for the medical entrance examination. And we are also help the student who are preparing for 2023. So I hope that you will all give us support. And if you are want online classes, I will provided you online classes in free of cost through the YouTube channel. Without any cost, you can watch our videos. You have to just subscribe the our channel and share the link of these type of the videos. What we are going to do today, I'm going to start the second chapter of the chemistry in class 11th. This video beneficial to all for NEET examiners as well as the students of the 11th class who are preparing for the future examinations. Okay, so बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए I am going to start the class, and I hope that you will like my video. So please subscribe my channel, share this video. Okay, if it is beneficial to you. So let us start the point. The name of the chapter is atomic structure. क्या पढ़ने वाले हैं? Atomic structure. Okay, so starting with the term atom. Atom का मतलब क्या होता है? ठीक है, बेसिकली एटम टर्म जो था, इट वाज यूज्ड बाय जॉन डाल्टन. इट वाज यूज्ड बाय जॉन डाल्टन
in a prospective way, in a prospective way. So the atomic word है, it is derived from a Greek word, it is derived from a Greek word name as एटोमियो. जो ग्रीक वर्ड है उसका नाम क्या है, उसको कहा जाता है एटोमियो, और उस एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल, अनकटेबल, और वी कैन से नॉन डिविजिबल, we can say non-divisible. So by these two words, you can understand very well that what is the meaning of term atom. Atom जो टर्म है उसका मतलब क्या है कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता या जिसको फर्दर काटा नहीं जा सकता. सो इन दिस केस एटम का जो जनरल टर्म का जो जनरल मीनिंग निकल करके आता है, इट मीन्स इट इज द smallest particle, it is the smallest particle. Okay, so atom is considered as the smallest particle of the substance. It was given by the John Dalton. John Dalton provided a atomic theory which tried to explain the properties of the atom. एटम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जॉन डाल्टन ने. तो आइए डिस्कस करते हैं जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं. ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है जॉन डाल्टन की थ्योरी का, वो कहता है कि दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस. atom is the smallest particle of the substance. किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटम कहते हैं. ठीक है, मतलब अब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. सबसे छोटा क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को, सपोज करो आपने, आपके पास ये पार्टिकल है और आपने इस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से. ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड, और फर्दर आप डिवाइड करते करते एक ऐसी फॉर्म में पहुंचेंगे जैसे डॉट है. ठीक है ना, ये डॉट अब होप दैट कि अब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिवाइड, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. ठीक है ना, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो ये जो जब लास्ट में जो पार्टिकल हमारे पास होगा उसको हम एटम कहेंगे, उसको हम एटम कहेंगे. तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट इसी बात से रिलेटेड है that atom can not be divided. Atom can, ठीक है ना, क्या होता है, atom can not be, atom can not be divided, atom can not be divided further. atom को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये होता है कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो वो कहां तक जाएगा, वो सबसे पहले एटम में कन्वर्ट होगा. और एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. तो हम ये कह सकते हैं दैट एटम कैन टेक पार्ट, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं बच्चों, एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. अगर किसी भी सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उसको अपने आप को एटम तक लेकर के जाना पड़ेगा. आफ्टर दैट वो क्या करेगा, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है. ठीक है, और एटम कैन नॉट बी लिव एलोन, एटम कैन नॉट बी लिव एलोन, एटम अकेला नहीं रह सकता. ठीक है ना, एटम कैन नॉट बी लिव एलोन. तो एटम क्या करेगा, एटम जो है वो किसी भी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा मॉलिक्यूल. तो एटम हमेशा किस फॉर्म में रहता है, एटम जो है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है. जैसे हम बात करें कि हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा और वो क्या बना लेगा,
वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेगा। ऐसे ही कार्बन है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सिमिलरली तो हम ये कहते हैं कि एटम कैन नॉट बी लिव एलोन इन मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि दैट जो एटम होता है, एक ही सब्सटेंस के जो एटम होते हैं, एक ही सब्सटेंस के जो एटम होते हैं, ठीक है ना, वो सभी तरह से सिमिलर होते हैं। वो क्या होते हैं, वो सभी तरह से सिमिलर होते हैं एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास में। हालांकि जॉन डाल्टन को इस लेवल तक इस बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने ये कहा था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं एक ही सब्सटेंस के एटम की, वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। क्या कहता है, दैट एटम्स of one substance, atom of one substance is same या is similar in all respect। in all respect का मतलब ये है कि सभी तरह से क्या है, सभी तरह से सिमिलर है। मतलब सपोज दैट ये कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर वाटर के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, वह पानी है इसके अंदर, वो प्योर वाटर है, मिक्सचर नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी वाटर होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, सबको H2O से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। H2O रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर हम एटम पर जाते हैं, यही बात एटम पर भी, क्योंकि तो मैंने मॉलिक्यूल का फॉर्म बता दिया, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह, पानी की जगह सपोज करो मैंने ऑक्सीजन गैस भर ली, ठीक है, ओनली ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम हैं, सबको हम ओ से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सबको किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और वो सब सेम तरह की प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इज नॉट similar, is not similar in all respect। वो किसी भी तरह से, ठीक है ना, वो किसी भी तरह से क्या नहीं होंगे, किसी भी तरह से सिमिलर नहीं होंगे, किसी भी तरह से उनके अंदर कोई भी समानता, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी। अगर मैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम को के कैरेक्टर्स को कंपेयर करना चाहूं, तो इनके बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, किसी भी तरह की, किसी भी तरह की कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, उस बात को समझिएगा। समझ में आती है बात। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। सो दिस आर द मेन पॉइंट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट ये कहता है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का कि जो एटम है सब्सटेंसेस के, एटम ऑफ द सब्सटेंसेस, atom of the substances follows the law of chemical combination। जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है ना, जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ पढ़े हैं, वो सब, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, वो सब फॉलो करता है, सब फॉलो करता है। समझ में आती है बात मेरी। आई होप कि ये जो मेन पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए अबाउट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आज एप्लीकेबल नहीं है इन सेवरल वेज, इन सेवरल वेज। ठीक है, तो जब वर्कर्स ने फर्दर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को स्टडी किया, सो दे फाइंड सम ड्रॉबैक्स। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या करेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें सबसे पहला जो केस आता है वो यही आता है कि जैसे डाल्टन ने कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये सरासर गलत है। इट इज इट इज इट इज 100% रॉन्ग दैट एटम कैन नॉट बी डिवाइड। आज हम लोग ये जानते हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, दैट एटम कैन बी
डिवाइड। एटम को क्या किया जा सकता है? एटम को डिवाइड किया जा सकता है किस फॉर्म में? इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons. These are the subatomic particles we will discuss later in this chapter. ठीक है ना? एटम को आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है. दैट वाई एटम इज नॉट अनडिविजिबल पार्टिकल. एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. स्मॉलेस्ट का मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब पार्टिकल्स को डिवाइड ना किया जा सकता हो, लेकिन एटम को तो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तभी तो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अगर एटम की स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ना पड़ेगा. एंड दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम. ठीक है. दूसरा बात क्या आई? दूसरी बात ये आई, जो दूसरा ड्रॉबैक आया, उसने कहा कि एटम जो है सेम सब्सटेंस के, जो हमने लिखा है लास्ट में, आप पढ़ सकते हैं, सेम सब्सटेंस के क्या होते हैं? सेम होते हैं. ठीक है. ये वाली बात रोंग है. अगर एक सब्सटेंस है उसके सारे एटम सेम नहीं होते हैं. इसका मतलब क्योंकि उसको पता नहीं था कि आइसोटॉप्स भी होते हैं. ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स. ठीक है ना. अब आइसोटॉप देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3. ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप. तो क्या सिमिलर हैं? एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन इनका मास नंबर कैसा है? मास नंबर सबका अलग अलग है. ठीक है ना. तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोटियम कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोटियम कहते हैं. इसको ड्यूटीरियम कहते हैं. और इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्राइटियम. क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ट्राइटियम. ऐसे ही कार्बन, 6 कार्बन 12 एंड 6 कार्बन 14. ठीक है ना. तो ये क्या है? दीज आर द आइसोटोप्स. सिमिलरली हर टाइप के एटम में, हर टाइप के सब्सटेंस में आइसोटोप्स होते हैं. और आइसोटोप्स, ठीक है, वो नॉर्मल एटम से एटॉमिक मास में क्या होते हैं? एटॉमिक मास में डिफरेंट होते हैं. ठीक है. आगे पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में. तीसरा पॉइंट क्या बताया? थर्ड पॉइंट इज दैट कि एटम, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर नॉट सेम इन एनी रेस्पेक्ट. ये भी कहा था, ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि आइसोबार्स भी होते हैं. क्या होते हैं? आइसोबार्स भी होते हैं. जो आइसोबार्स होते हैं दे आर बिलोंग टू द डिफरेंट सब्सटेंसेस. जैसे 6 कार्बन 14, ऐसे ही 7 नाइट्रोजन 14. अभी देखो, ये तो कार्बन है, बिल्कुल अलग एक सब्सटेंस है. ये नाइट्रोजन है, ये दूसरा सब्सटेंस है. लेकिन इनके, ठीक है ना, क्या बराबर हैं? इनके मास नंबर इक्वल हैं. तो सेम हुए या नहीं हुए? सो ही वाज नॉट एक्सप्लेन दिस थ्योरी. क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, दोबारा समझ लीजिएगा. पहला ड्रॉबैक यह है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है. वो कहता था कि एटम एटम जो अनडिविजिबल है. उन्होंने कहा था कि सभी जो एटम है एक ही सब्सटेंसेस के, वो सेम होते हैं. ऐसा नहीं होता, आइसोटोप्स अलग अलग होते हैं. थर्ड पॉइंट में जो उसका ड्रॉबैक है, उसमें यह कहा था कि एटम जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के किसी भी तरह से सेम नहीं हो सकते. ये भी हम आज लोग जानते हैं कि गलत है. आइसोबार्स बिलोंग टू द डिफरेंट सब्सटेंसेस बट दे हैव सिमिलर मास नंबर. उनके पास क्या होते हैं? उनके पास सिमिलर मास नंबर होते हैं. ठीक है. तो मैंने आप लोगों को बताया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी. आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के व्हाट आर द मेन पॉइंट्स एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. आई होप दैट. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ फर्दर बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बच्चों? वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जब ये पता पड़ा कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना, एटम को डिवाइड किया जा सकता है, तो उसके बाद ये पता पड़ा कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है. तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं. तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 तरह के पार्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं. हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन, और हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर द मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इनके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं,
थोड़ा थोड़ा करके हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, हम उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अबाउट द इलेक्ट्रॉन। अभी समझिएगा, तो इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे, इट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है माइकल फेराडे। ठीक है ना, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे के, ठीक है ना, माइकल फेराडे के एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं सारी चीजें। माइकल फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को बेस बना करके, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई। ठीक है, इसकी डिस्कवरी से पहले एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़नी है तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। माइकल फेराडे ने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी। ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लो बैकग्राउंड, उसके बाद बात करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, ठीक है ना। इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने अपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट थे, जो सॉल्यूशन में किए थे, वो उन्होंने गैस के अंदर किए। ठीक है ना, इस ट्यूब में इन्होंने हाइड्रोजन गैस भरी और इसके अंदर हाई वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है ना, हाई वोल्टेज अप्लाई किया और इलेक्ट्रोड लगाए। एक तरफ लगाया एनोड और एक तरफ लगाया कैथोड। ठीक है, अब बात ये आती है, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस का यूज क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही लाइट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है ना, लाइटेस्ट एलिमेंट है, और जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास रेशियो वो क्या देता है? वो मिनिमम देता है। ठीक है ना, चार्ज और मास का रेशियो आगे भी डिस्कस करेंगे। ईएम वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन के मीडियम में क्या आती है? मिनिमम आती है। वोल्टेज कितना दिया? वोल्टेज दिया 10,000 वोल्ट। क्या दिया? 10,000 वोल्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। ठीक है ना, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। अब डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है ना, क्या लगाया यहाँ पर? यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया। दोनों तरफ क्या लगाए? इलेक्ट्रोड लगाए। एक इलेक्ट्रोड परफोरेटेड लिया, ठीक है ना, और इनको एक सर्किट से जोड़ दिया। इनको क्या कर दिया? एक सर्किट से जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने क्या किया, जरा देखिए, सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर था निगेटिव चार्ज और यहां पर था पॉजिटिव चार्ज। इसको कहा कैथोड और इसको कहा एनोड। ठीक है ना, एनोड कैसा था? एनोड था परफोरेटेड। एनोड कैसा था? परफोरेटेड। बैक में जो डिस्चार्ज ट्यूब की जो एक पॉइंट है, इस पर इन्होंने क्या लगाया? फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दिया। क्या कर दिया? फ्लोरोसेंट कोटिंग। और ये किसकी कोट किया इन्होंने? इन्होंने क्या? जिंक सल्फाइड का कोट किया। क्यों किया, जरा इसको समझें। ठीक है ना, क्यों किया, जरा इसको समझें। इसलिए किया कि जब इनमें हाई वोल्टेज जाएगा तो यहां से जो रेज निकलेंगी, यहां से जो रेज निकलेंगी वो इस पोर से पास होकर के इस प्लेट से टकराएंगी। जब इस प्लेट से टकराएंगी, सो द जो रेज है दे प्रोवाइड सम फ्लोरेसेंस, कुछ चमक उत्पन्न करेंगी। ठीक है ना, कुछ चमक पैदा करेंगी, जिससे ये पता पड़ेगा कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकली। जब इन्होंने यहाँ पर 10,000 वोल्ट का करंट पास किया तो क्या देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड के पीछे वाली दीवार पर जाकर टकराती हैं
और कुछ चमक, कुछ फ्लोरेसेंट क्रिएट करती हैं। सो बाय दिस ऑब्जर्वेशन ही सेज दैट दीज रेज आर कैथोड रेज। इन रेज को क्या कहा जाता है? दीज रेज आर नोन एज द कैथोड रेज। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके, तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आप वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज आई विल डिस्कस इन द न्यू वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चीजों को कवर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल। We will meet in the next video. Thank you.